find my 12th standard students. This is Basit sir welcoming you to your whole classes, the tutors and commerce set. Today we are going to complete chapter number 2 of OC, which we started I guess 20 days ago और हमारे 4 लेक्चर लेने में बहुत ज़्यादा गैप पड़ गया जिसके वजह से it took us 20 days. Today we are going to finally complete that particular chapter. The last topic for the day, the last topic for the chapter is controlling. Controlling के अंदर में मीनिंग डेफिनेशन और उसके 7 इंपॉर्टेंस हम लोग पढ़ेंगे. इस चैप्टर नंबर 2 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट OC एंड M का चौथा लेक्चर है सेकेंड चैप्टर का. सो लेट अस गेट स्टार्टेड. ओके, कंट्रोलिंग. पिछले 5 हम लोग ने जो फंक्शंस पढ़े थे उसमें क्या था? प्लानिंग, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग, उसके बाद स्टाफिंग, then we studied about directing, then we studied about coordinating, and now sixth function is controlling. We studied all the 5 functions very efficiently, very smoothly, very nicely and very बहुत आराम से हम लोग ने पढ़ा है. इतना कोई हम लोग ने घाई नहीं किया. So I hope you will have understood what I've taught you in the previous lectures, previous 3 lectures of this particular chapter. अगर तुमको नहीं समझा तो फिर से वो लेक्चर देखो, तब भी जाके तुमको कंट्रोलिंग भी समझेगा, क्योंकि कंट्रोलिंग सबसे लास्ट फंक्शन है और वो टोटली डिपेंडेंट है वो 5 फंक्शंस पे. ठीक है. If you have not read or studied about those 5 functions, then you won't be understanding this controlling function. So वो लेक्चर पहले देख लो, उसके बाद ये लेक्चर स्टडी करने आना या देखने आना. जितनी बार देखना है देखो, डाउनलोड करके रख लो. ठीक है. And I'm also trying, coping up with taking daily lectures, or you can say that हफ्ते में 2 लेक्चर तो कम से कम do, just because I have to take 9th standard 2 lectures, 2 to 3 lectures, 12th standard 2 to 3 lectures, 11th standard 2 to 3 lectures, and 10th standard 2 to 3 lectures per week. And we just have one room to take the lecture, and सर को भी लेना होता है, सर को भी लेना होता है, तो उसमें शेड्यूल थोड़ा मैनेज नहीं हो पाता है. कहीं ना कहीं घर का भी काम रहता है. सो दिस पर्टिकुलर थिंग अफेक्ट्स द लेक्चर शेड्यूल एंड एवरीथिंग वेरी मच. ओके, सो दिस इज द मॉर्निंग ऑफ मंडे एंड आई वोक अप एंड आई जस्ट डिसाइडेड आई not do anything else. I'll just take lectures from my students, कि उन लोगों को बहुत दिन से मैंने लेक्चर दिया नहीं है. आज हम लोग लेक्चर लेके ये चैप्टर को कंप्लीट करेंगे. ऑल्सो वी विल बी टेकिंग इकोनॉमिक्स लेक्चर आफ्टर दिस. आई विल कंटिन्यू सेम डे सेम टाइम राइट नाउ. अभी मैं लूँगा और तुम लोग को जब तक तुम लोग ये वीडियो देख रहे हो तब तक मेरा एडिट करके भी हो चुका होगा. ओके, सो लेट अस गेट started. I know I am talking a lot today just because I am very fresh and I had a very great sleep last night. तुम लोग भी रात को सोया करो, दिन में मत सो. लॉकडाउन है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग रात को सीरीज वगैरह देखोगे और दिन में जाकर दिन में सोओगे. इट इज़ नॉट गुड. कल को अगर समझो लॉकडाउन खुल गया तो तुम्हारी हैबिट जो है वो नाइट शिफ्ट की हो जाएगी. सो दैट इज़ नॉट अ प्रॉपर वे ऑफ लिविंग अ लाइफ. एक्सरसाइज करो, घर में थोड़ा सा टीवी वगैरह देखो, हो सके तो पॉजिटिव रहो. ठीक है. और इतना सारा बात करके हमारा लेक्चर हम लोग एक्सटेंड नहीं करेंगे, हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे. ठीक है. कंट्रोलिंग. Controlling is function required in all types of organization, whether profit making or non-profit making. Similarly, it is performed at all levels: top level, middle level, and lower level of management. Controlling is indispensable function of management. The effectiveness of planning function can be determined with the functions of controlling, planning, and controlling are functions of controlling. Planning and controlling are major parts of management cycle. Now what they have told over here is very simple thing. The controlling जो है, it is basically you can say that indispensable function. मतलब क्या? ये function हम लोग कोई भी particular part of the management से नहीं निकाल सकते. If you are working in top level, you have to perform controlling function. If you are working in middle level, you have to perform controlling function. If you are working in lower level, you have to perform कंट्रोलिंग फंक्शन. तुम लोग बोलोगे सर 5 मैनेजमेंट जो हम लोगों ने पिछले 5 फंक्शन जो पढ़े वो भी तो हमको तीनों लेवल पे अप्लाई करना है ना, तो इसको अलग से ऐसा क्यों लिख के दिया गया है? नहीं, हम लोग बाकी सब तीनों लेवल पे अप्लाई नहीं करते. टॉप लेवल पे डायरेक्ट अप्लाई नहीं होता. डायरेक्टिंग टॉप लेवल से मिडिल और लोअर लेवल पे अप्लाई होता है. मिडिल और लोअर लेवल पे प्लानिंग अप्लाई नहीं होता है. प्लानिंग करने का काम कौन करता है? टॉप लेवल वाले करते हैं. सो हर एक फंक्शन जो है वो अलग अलग लेवल पे या कहीं ना कहीं कोई ना एक लेवल मिस कर जाता है. बट कंट्रोलिंग जो है इट इज अप्लाइड इन ऑल द 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. ओके, कंट्रोलिंग इज अप्लाइड इन टॉप लेवल, कंट्रोलिंग इज अप्लाइड इन मिडिल लेवल एज वेल एज लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट. एज वेल एज कंट्रोलिंग जो है इट कैन नॉट बी परफॉर्म, इट कैन नॉट बी फंक्शन अनलेस एंड अनटिल प्लानिंग इज डन. तुम लोग बोले सर ये क्या है? सबसे पहला वाला फंक्शन और सबसे लास्ट वाला फंक्शन आप कैसे कैसे जोड़ सकते हो? यस,
अगर हम लोग प्लानिंग नहीं करेंगे तो कंट्रोलिंग भी नहीं होगा। कैसे? अगर हमने प्लानिंग नहीं किया तो हमने उसके हिसाब से ऑर्गेनाइज नहीं किया, हमने ऑर्गेनाइज नहीं किया तो उसके हिसाब से हमने स्टाफिंग नहीं की, उसके हिसाब से हम लोगों ने डायरेक्टिंग नहीं किया, उसके हिसाब से हम लोगों ने कोऑर्डिनेट नहीं किया, और उसके हिसाब से फिर कंट्रोल भी नहीं होगा। अल्टीमेटली प्लानिंग इज द बेस, द रूट ऑफ द कंपनी, एंड कंट्रोलिंग आर द लीव्स और फ्रूट्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, इफ द रूट्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग द फ्रूट्स वोंट ग्रो। ठीक है, फ्रूट्स वोंट राइट। ओके, सो हर एक पर्टिकुलर चीज एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, आई नो, बट कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग इज द लास्ट फंक्शन एंड प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन, एंड इट इज ऑल टुगेदर टोटली डिपेंडेंट ऑन प्लानिंग whether the company will implement controlling or not. If they are planning, they will have to implement controlling function, because controlling function एक indispensable function of management है जिसको हम लोग कंपनी के कोई भी पार्ट से अलग नहीं कर सकते हैं। I hope you people have understood what I have told you right now कि planning function अगर होता है तो in the end controlling function भी होगा ही होगा। कंट्रोलिंग फंक्शन प्लानिंग के बिना नहीं हो सकता है। कंट्रोलिंग फंक्शन इज अप्लाइड एट ऑल द 3 levels ऑफ मैनेजमेंट। कंट्रोलिंग फंक्शन is an indispensable part of management. It cannot be excluded, it cannot be ignored. It is applied in each and every corner of the company. Okay, moving ahead. Controlling is a function of comparing the actual performance with the predetermined standards and performances. It measures deviations, if any, identifies the causes of deviation and suggests corrective measures. The process of controlling helps in formulation of future plans also. Controlling is nothing but जो प्लान हमने किया था उसके हिसाब से काम हो रहा है कि if we have planned about कंपनी में ये साल 5 लाख का प्रॉफिट होना चाहिए, बट कहीं ना कहीं प्रॉफिट 4.5 लाख का हो गया। सो वेयर इज दैट 50K अमाउंट, 50,000 रुपया जो हमने प्रॉफिट नहीं कमाया, वो क्यों नहीं कमाया? तो वो जो आंसर है इस सवाल का जो जवाब है वो कंट्रोलिंग फंक्शन ही हमको मिलता है। अब लोग ये सर कैसे मिलता है? कंट्रोलिंग फंक्शन क्या खुद से जवाब देगा? कंट्रोलिंग वर्ड खुद से बोल पड़ता है कंपनी में? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कंट्रोलिंग इज अ फंक्शन which looks after the predetermined functions। मतलब पहले हमने क्या सोचा था और हो क्या गया, अब ऐसा क्यों हुआ, उसका जो सोल्यूशन है, उसका जो आंसर है, वो हमको पता लगाना है कि हमने एक साल में ऐसा क्या गड़बड़ कर दी है, एक साल में हमने ऐसा क्या कम कर दिया जिसकी वजह से ये प्रॉफिट हमने जो डिजायर किया था, जो हमने गोल सेट करके रखा था, दैट पर्टिकुलर गोल वी डिड अचीव। ओके, सो इन ऑर्डर टू फाइंड द सॉल्यूशन फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, दैट व्हाई डिड वी अचीव द प्रॉफिट्स, दैट पर्टिकुलर आंसर यू विल गेट इन द फंक्शन कॉल्ड कंट्रोलिंग। ठीक है, ओके, मूविंग अहेड विद द डेफिनेशन। There is a table given to you in the textbook. If you have purchased the textbook or not, I don't know, but अगर तुम्हारे पास PDF फॉर्मेट में है तो प्लीज़ देख लेना कैसे वो काम करता है। वो इतना ज़रूरी तो है नहीं आई गेस, बट तुम लोग को क्वेश्चन आंसर्स में अगर तुमको बनाना है then you can get an extra 1 mark if you are drawing that particular table. Okay, definition of Philip Kotler। थर्ड वाला डेफिनेशन है, 3 डेफिनेशन है, उसमें से कोई भी छोटा वाला अच्छा वाला जिसका नाम अच्छा लगे वो चुन के तुमको डेफिनेशन लिख देना है आंसर में। Definition of Philip Kotler: control is the process of taking steps to bring actual results and desired results closer together। हमने सोचा था 5 लाख कमाने का, पर हमने 4.5 लाख कमाया। वो जो डिजायर्ड रिजल्ट ऑफ 5 लाख था और जो एक्चुअल रिजल्ट 4.5 लाख है, उसको क्लोज लाने का काम कौन करता है? कंट्रोलिंग फंक्शन करता है। अब तुम लोग को पता है दिस इज not this particular function does not gives the answer, actually not gives the answer, but it helps you to achieve the desired results। ठीक है, अगर मुझे लगता है कि मेरी कंपनी में 5 लाख में ये ख्याल कमा सकता हूँ, तो वो अचीव करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन अगर कोई है तो वो कंट्रोलिंग फंक्शन है। ठीक है, you are bringing your desired result of 5 lakh rupees profit and your actual result which you can earn 4.5 lakh closer। 5 लाख को छोटा मत करो, 4.5 लाख को 5 लाख की तरफ लेके जाओ। ठीक है, अभी इसको कैसे समझाऊं मैं, देखो तुम लोग को बताता हूँ। ओके, टेक योर ओन क्लासेस, अपनी क्लासेस ले लो। ठीक है, मैंने तुमको पढ़ाया, मैंने तुम लोग का वीकली टेस्ट लिया, मैंने टाइम टू टाइम चेक करके दे दिया, तुम लोग को अच्छे से लेक्चर्स का रिवीजन मिलता गया, तुम लोग कॉलेज में पढ़ाई किए, सब कुछ किए, बट तुम लोग को मैंने कंट्रोल करके नहीं रखा। ठीक है, तुम लोग को मैंने कंट्रोल नहीं किया, तुम लोग मस्ती कर रहे थे, तुम लोग कंपनी में तुम लोग
क्लास में ओके तुम लोग क्लास में बहुत मस्ती कर रहे थे एंड दिस पर्टिकुलर थिंग रिजल्टेड इन यू नो डेफिशिएंट मार्क्स। हमने जैसा सोचा था कि हाँ ओके प्राजक्ता को इतना मार्क्स आना चाहिए था पर आया नहीं, विवेक को इतना मार्क्स आना चाहिए था पर आया नहीं, केविन को जितना चाहिए था उतना आ गया जस्ट बिकॉज ही इज वेरी सिंसियर। ओके ही डजंट टॉक्स, करता होगा बात, मेरे सामने तो करता नहीं, बट जो रिजल्ट हमको चाहिए था बट वैसा रिजल्ट आया जस्ट बिकॉज फ्रॉम माई साइड आई डिड वेरी नाइसली एवरीथिंग बट आई डिडंट कंट्रोल यू पीपल फोकस्ड a bit more on your naughtiness, मस्ती कर रहे थे तुम लोग और जिसकी वजह से your marks got decreased, तुम लोग का मार्क्स कम हो गया। ठीक है, यही चीज कंपनी में भी अप्लाई होती है। ठीक है, मैंने जिसका भी नाम लिया है कि मार्क्स उसका कम आया, डोंट टेक इट सीरियसली, यू पीपल स्टडी अ लॉट, आई नो, बट क्या गलत बोला है ठीक है, थोड़ा और मेहनत करो, घर पे बैठे हो पढ़ाई करो, लॉकडाउन में तुम लोग को बार बार रिवाइज करते रहना चाहिए, यूट्यूब पे लेक्चर्स देखते रहना चाहिए, बट आगे बढ़ते रहे। ठीक है, सो कंट्रोलिंग इज द फंक्शन विच हेल्प्स यू टू अचीव योर डिजायर्ड रिजल्ट्स। ठीक है, अगर तुमने कंपनी में जो प्लान करके रखा था उस प्लानिंग को अचीव करने के लिए तुमने सबको कंट्रोल करके रखा कि नहीं यू हैव टू डू दिस वे, यू हैव टू डू दैट वे, यू हैव टू डू दैट वे, बट इन अ पोलाइट वे। सर पे चढ़ के मारना नहीं है कि तुमको काम करना ही है, ऐसा नहीं। यू हैव टू बी वेरी पोलाइट एंड यू हैव टू बी वेरी kind to your staff, and that way they will achieve the desired result you have desired for your company. Okay, let us move ahead with importance, the last topic, the last 7 points of the chapter. ओके, इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग में पहला पॉइंट है फुलफिलिंग गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कंट्रोलिंग इज द फंक्शन ऑफ मेजरिंग द परफॉर्मेंसेस एट एवरी पॉसिबल स्टेज, फाइंडिंग आउट द डेविएशंस इफ एनी एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शंस अकॉर्डिंग टू प्लान्ड एक्टिविटीज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, thus it helps in fulfilling the organizational goals। जो गोल्स हमने सोचा था, जो प्लानिंग हमने की थी पहले फंक्शन में, प्लानिंग फंक्शन में, अगर वो प्लानिंग फंक्शन में हमने जो डिजायर्ड रिजल्ट अचीव करने का सोचा था, अगर हमको वो अचीव करना है तो वी नीड टू मेंटेन कंट्रोल ओवर द कंपनी। डिसिप्लिन होना चाहिए, हर काम टाइम टू टाइम होना चाहिए, एंड देयर शुड बी नो नेग्लिजेंस ऑफ द वर्क। ठीक है, एंड एवरीबडी हु इज डूइंग द वर्क शुड डू इट विद अ ग्रेट इनिशिएटिव। ठीक है, उसको पूरा एकदम अपनी जिम्मेदारी से काम करना है। तो ये नहीं सोचना कि कंपनी में अगर मैं काम कर रहा हूँ तो मैं मेरे सैलरी के लिए काम करना है, ही और शी शुड वर्क फॉर द कंपनी इटसेल्फ एंड नॉट फॉर हिमसेल्फ और हरसेल्फ। ठीक है, हमने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ा था, पता है ना, एक पॉइंट पढ़ा था, सबऑर्डिनेशन ऑफ जनरल इंटरेस्ट टू सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। आई यार मार्केटिंग एवरीथिंग यार, मेरे को पूरा 14 पॉइंट्स मुंह पे याद था, बट ये बड़ा वाला पॉइंट इसलिए याद नहीं था। ओके, सो तुमको कंपनी के बारे में पहले सोचना है, बाद में अपने बारे में सोचना है, बिकॉज कंपनी विल थिंक अबाउट यू इफ यू आर वर्किंग इन अ वेरी एफिशिएंट वे फॉर द कंपनी। मेकिंग एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, इफ यू आर वर्किंग इन अ कंपनी एंड इफ यू आर कंट्रोलिंग द कंपनी वेरी वेल, इफ यू आर seeing to it that the company में काम properly हो रहा है, that particular thing will result in less wastage and more finished goods in your company। ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अचीव करने के लिए हमको कम से कम लॉस करना पड़ता है, कम से कम वेस्टेज करना पड़ता है, कम से कम पैसा वेस्ट करना पड़ता है, और जिसके वजह से प्रॉफिट ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। इफ़ यू आर वेस्टिंग लेस रिसोर्सेज एंड मैन्युफैक्चरिंग मोर फिनिश्ड गुड्स with the utilization of less resources, that means you are saving the, there are two things you are doing. You are saving the money from the company, you are saving the resources of the company, as well as you are making more finished goods to be sold। अल्टीमेटली प्रॉफिट तो आएगा ही, बट यहाँ से सेव भी होगा, और कहीं ना कहीं उस सेविंग से और मैन्युफैक्चर करके हम लोग प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो प्रॉफिट विल बी ऑप्टिमल, तो प्रॉफिट विल बी एट पीक। ठीक है, सो इन ऑर्डर टू अचीव दोस टाइप्स ऑफ प्रॉफिट विच आर एट पीक, यू नीड टू मेक प्रॉपर कंट्रोलिंग ओवर योर कंपनी। समझ रहा है ना? ओके, थर्ड पॉइंट, एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स।
An efficient control system helps management in judging the accuracy of standards, whether they are accurate or not. Controlling measures are flexible to some extent. So after reviewing them according to changing circumstances, they are revised from time to time, which is beneficial for checking the performance accurately. Now what they have told over here is a very simple thing. Accuracy of standards का मतलब है keeping updated, staying updated, ठीक है? Keeping a check on the updated list. Okay. Now what they have told over here is कि सिंपल सी एक चीज़ है कि अगर कोई कंपनी अगर चल रही है और कंपनी के ट्रेंड्स के हिसाब से अगर समझो मार्केट नहीं चल रहा है, देन कंपनी शुड चेंज और गेट अपडेटेड टू द ट्रेंड्स विच द मार्केट इज ऑन. ठीक है. अगर मार्केट में समझो नैरो बॉटम जीन्स का फैशन चल रहा है, पर तुम लोग अभी भी बेल बॉटम जीन्स ही बना रहे हो, दैट पर्टिकुलर थिंग विल हार्म दी सेलिंग ऑफ योर प्रोडक्ट्स. तुम लोग की बेल बॉटम कौन खरीदेगा जब नैरो बॉटम का फैशन चल रहा है? तो बेल बॉटम यानी कि वो बड़ा वाला पैर बड़ा नहीं होता है, उसका जो एंड होता है जीन्स का वो बहुत बड़ा होता है. ठीक है. सो बेल बॉटम जीन्स का फैशन तो रेट्रो के टाइम का था. ठीक है. एंड देन केम द नैरो बॉटम जीन्स. तो नैरो बॉटम में जब पूरा जीन्स का फैशन कन्वर्ट हुआ, दैट पर्टिकुलर टाइम द बेल बॉटम जीन्स मेकिंग कंपनीज आल्सो टर्न्ड टू नैरो बॉटम जीन्स. वो लोग अपडेटेड थे, उन लोग को नई चीज़ें पता होनी चाहिए. ठीक है. तो ये भी एक टाइप का फंक्शन है जिसमें हम लोग कंट्रोलिंग, ये भी एक टाइप की बोलते हैं ना काम है जो कंट्रोलिंग में किया जाता है. यू शुड कीप एन आई ऑन एवरी चेंजिंग एस्पेक्ट्स ऑफ द मार्केट. ठीक है. एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स मतलब क्या कि हम लोग को एक्यूरेट रहना है जिस स्टैंडर्ड या जिस पर्टिकुलर फैशन में या जिस पर्टिकुलर ट्रेंड में बाहर का मार्केट चल रहा है. वी शुड स्टे एक्यूरेट टू दैट, नॉट अप्रोक्सीमेट बट एक्यूरेट. नॉट अप्रोक्सीमेट बट एक्यूरेट. यहाँ वहाँ का नहीं, थोड़ा सा क्लोज आ जाएंगे तुम लोग मार्केट ट्रेंड से, ऐसा नहीं. यू हैव टू गो विद द मार्केट ट्रेंड, नॉट क्लोज टू द मार्केट ट्रेंड. ठीक है. एंड देन ओनली योर कंपनी विल अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट व्हिच they have planned in the planning function. Okay. आगे बढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट पे. Motivates employees after setting standards of checking performances, they are communicated to employees in advance. Due to this, employees gets an idea about what to do and how to do. Performances are evaluated, and on that basis, employees are rewarded in the form of increment, bonuses, promotions, etc. It motivates the employees to perform at their best level. Okay. Accuracy of standard में एक चीज मैंने बताना भूल गया कि accuracy of standard में तुम लोग को not just market trend but your company's trend, इसका ऊपर भी ध्यान देना है तुम लोग को. मार्केट तुम लोग को पता हो चल जाता है कि क्या चल रहा है मार्केट में, बट कंपनी में क्या चल रहा है वो भी तुमको पता होना चाहिए. Your company's working standard should be at its 100%. If it is working at its 80% or 70%, you should come to know by just observing or by just सर्वे करके तुमको पता लगना चाहिए कि तुम्हारी कंपनी किस स्टैंडर्ड पे किस पर्टिकुलर लेवल पे काम कर रही है. एंड इफ यू आर ऑब्जर्विंग कि कंपनी का लेवल कहीं ना कहीं गिर चुका है या कहीं ना कहीं कंपनी इज वर्किंग इन अ वेरी यू कैन से दैट लेस एफिशिएंट वे, you should see that your company can you should see that your company comes to the track of efficiency again. ठीक है. This is a very important particular you can say that aspect of controlling. कंट्रोलिंग में हम लोग देखते हैं कि हमारी कंपनी और मार्केट दोनों प्रॉपर्ली चल रहे हैं कि नहीं. मार्केट के तो ऑब्जर्वेशन करके पता चल जाएगा, कंपनी के भी ऑब्जर्वेशन करके तुमको पता लगाना है दैट वेदर योर कंपनी फिल्मन और स्टाफ are working properly and efficiently or not. If they are not working properly or efficiently that particular time, you have to increase the standard or you can say increase the level of your employees. अपग्रेड करो उनको तुमको लेवल 3 के हिसाब से काम करना है. एंड अल्टीमेटली यू शुड मेक देम वर्क इन अ वेरी एफिशिएंट वे in order to achieve your desired result. अब तुम लोग बोलोगे सर कि एम्प्लॉयज काम क्यों करेंगे, एम्प्लॉयज लेवल 3 अचीव क्यों करेंगे, एम्प्लॉयज अपने आप को अपग्रेड क्यों करेंगे? क्योंकि उनको लालच देना है इंक्रीमेंट्स के, उनको बोनसेस देना है, गिफ्ट्स देना है. If your staff is working properly, you should reward the staff properly. Then only your staff will work properly in future, and then again you have to reward them. This will keep them motivated. Ultimately, why we are working in a company? Why those staff members are working in that company? Just to earn the money, and you have to give them more money if they are doing more job.
if they are doing more work, if they are doing the work very efficiently, if they are doing what you have told them to do, if they are doing more than what you have told them to do, that is also very nice. But less, अगर वो लोग कम काम कर रहे हैं तुमने जितना बोला है, then particularly it is your fault that you have not kept an eye on them. स्टाफ अगर कम काम करता है जितना तुमने बोला है, तो वो स्टाफ की गलती नहीं है, कहीं ना कहीं टॉप लेवल मैनेजमेंट की गलती है, that they have not kept an eye on the staff members if they are working less, or you can see that they are not achieving the desired results what top level has thought. ठीक है, so controlling function में what we need to do is we need to evaluate, we need to bring into notice to our employees कि तुमको क्या particular चीज you are not working properly, ऐसा तुमको स्टाफ को बताना है, how to work properly, how to become efficient again, ये भी तुमको स्टाफ को बताना है, and motivate them and give them some benefits or rewards if they have done the work very properly the way you have desired. Okay, इससे उनको motivation तो मिलेगा ही, ultimately they will do good job for your company in future as well. Coming to fifth point we have ensures order and discipline. Okay, this is the most simple point. अगर मैंने तुम लोगों को बताया कि हाँ, अगर तुम लोग क्लास में पढ़ने आते हो और मैंने तुमको सब पढ़ा लिया, टेस्ट ले लिया, तुम लोग को एग्जाम वगैरह ले लिया, टेस्ट पेपर साइन करके दे दिया, बट द थिंग इज यू हैव नॉट स्कोर्ड द डिजायर्ड रिजल्ट्स. मैंने तुम लोग को 100% पढ़ाया बट तुमने उसका 50% भी नहीं रिजल्ट लाया, तो अल्टीमेटली हुज फॉल्ट इज दैट? इट इज नॉट योर फॉल्ट. योर फॉल्ट मतलब खुश होने की जरूरत नहीं, इट इज नॉट कम्प्लीटली योर फॉल्ट, इट इज समवेयर अराउंड माई फॉल्ट दैट आई हैव नॉट केप्ट एन आई ऑन यू पीपल. बस मैं पढ़ा के चला गया, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए. इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द कंपनी एज वेल दैट दे शुड कीप एन आई ऑन देयर स्टाफ एंड दे शुड मेक श्योर दैट देयर स्टाफ मेंबर्स वर्क प्रॉपर्ली एंड थॉरली. ओके, स्टाफ मेंबर्स को खुश रखना ज़रूरी है, उनको मोटिवेट करने के लिए बोनस और रिवॉर्ड्स देना ज़रूरी है, इंक्रीमेंट देना ज़रूरी है, उनको 100% उनका काम करने पे मजबूर करना है, तुमको फोर्स नहीं करना है, मजबूर करना है. ठीक है, वो लोग खुद से करने चाहिए, तुमको ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए तुम लोग उनके ऊपर. कहीं ना कहीं your company will achieve the desired result if you are keeping your staff members happy, if you are giving them time to time bonuses and increments, if you are doing good for them, they will do good for you. And maintaining discipline is the most important thing in the company. ऐसा नहीं कि कोई भी कैसे भी आ रहा है, you should make sure that कि सब लोग formal clothes में आते हैं, you should make sure everybody speaks in English, or if they are speaking in Hindi, they should not use the abusive languages. They should do their work time to time. ठीक है, facilitates coordination. If the work is being done on time to time, अगर सब अपना अपना काम टाइम टू टाइम करेंगे, सब अपना काम प्रॉपरली करेंगे, 100% एफिशिएंसी के साथ करेंगे, जैसे एक स्टेज पे सब लोग अपना अपना स्टेप्स एक साथ मिलकर करते हैं, कोऑर्डिनेशन बन जाता है ना उससे डांस में. तो वैसे ही अगर कंपनी में भी सबने एक साथ मिलकर अपना काम टाइम टू टाइम कंप्लीट किया, अल्टीमेटली द कोऑर्डिनेशन विल इम्प्रूव एंड अल्टीमेटली ईच एंड एवरी फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट विल इम्प्रूव वेरी एफिशिएंटली. एंड लास्ट पॉइंट फॉर द डे एंड चैप्टर इज psychological pressure. The performance are evaluated with the standard targets. The employees are very well aware that their performance will be evaluated and they will be rewarded accordingly. This psychological pressure works as a motivational factor for employees to giving the best performances in the company. End of the chapter, but not the end of the last point and its explanation. What they have told over here is कि तुमको employees को काम करने पे मजबूर करना है. मैंने तुम लोगों को बताया कि तुमको employees को बोल के रखना है at the start of the year कि हम लोग at the end of the year I will look after each and every employee's work. मैं सबके काम पूरे साल पर देखूंगा और उसके हिसाब से I will reward the best employee of the year, the best, or you can say that हर एक एम्प्लॉय को कुछ ना कुछ मिलेगा उसके काम के हिसाब से. जो जितना अच्छा काम करेगा उतना उसके काम के हिसाब से उसको रिवॉर्ड्स मिलते जाएंगे एंड अल्टीमेटली दिस विल बिकम द मोटिवेशन कि उनको पूरे साल भर में अच्छा काम करना है. सब लोग टाइम पे आएंगे, सब लोग टाइम पे जाएंगे या टाइम के बाद जाएंगे, ओवर टाइम करने की कोशिश करेंगे. कंपनी में दे विल ब्रिंग आउट मोर एंड मोर रिजल्ट्स इन लेसर एंड लेसर रिसोर्सेज. ठीक है, तो कहीं ना कहीं दिस बिकम्स द मोटिवेशन फॉर द एम्प्लॉयज एंड दिस मोटिवेशन विल रिजल्ट in achieving the desired result which the company have planned in their first function of management. Okay,
So this was chapter number 2 of OC, Functions of Management. We completed this lecture, this chapter in 4 lectures. In first lecture we studied about planning. In second lecture we studied about organizing and staffing. In third lecture we studied about coordinating and directing. And in last lecture today, in fourth lecture, we studied about controlling. ठीक है? So this was chapter number 2. I hope you will have understood my lecture. अगर तुम लोग इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाओ. अगर लाइक करना है, नहीं समझ में आया, यहाँ तक देखने के बाद भी नहीं समझ में आया तो डिसलाइक कर सकते हो. बट अगर तुमने यहाँ तक देखा है तो कहीं ना कहीं पसंद ही आया होगा तो उसको लाइक करके भी चले जाना. डिसलाइक करने की जरूरत है नहीं. ठीक है? And please share this video with your friends and tell them to share with their friends and their friends and their friends so that we can achieve more and more subscribers and more viewers, more and more likes and dislikes and more comments. अगर तुम लोगों को उसमें से डाउट है चैप्टर में से तो you can comment down in the comment section. You can WhatsApp me if you have my number. You can tell to your friends कि हाँ हमारे एक सर है जो बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, theory subjects के expert है. You can tell your friends and we will have a good 2020. We'll try to improve this year. अभी भी आधा साल बचा है. कहीं ना कहीं हम लोग एजुकेशन से इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे. मैं YouTube पे फ्री लेक्चर्स इसलिए पोस्ट कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज आई डोंट हैव मनी टू डोनेट बट आई हैव एजुकेशन टू डोनेट. सो आई विल डोनेट दिस एजुकेशन फॉर द फ्री ऑफ कॉस्ट एंड नॉट लाइक अदर पीपल इन द वर्ल्ड हु आर टेलिंग टू जॉइन Zoom and this and that so that they can earn money from your online lectures. वैसा नहीं करना है. हम लोग पैसा नहीं कमाने के लिए बैठे हैं इस टाइम पे. आई नो that nobody is earning any penny. कोई पैसा कमा नहीं रहा है just because ये जो लॉकडाउन है और इतने सारे क्राइसिस आ गए हैं, इकोनॉमिक लॉस हो रहा है पूरी कंट्री को. सो व्हाई टू प्रेशराइज पीपल टू पे द मनी. यूट्यूब है, फ्री में लेक्चर्स है. 10 बार देखो. 10 बार देखने के लिए अगर तुम्हारा डेटा यूज़ हो रहा है तो पहली बार ही तुम लोग डाउनलोड करके देख लो. ऑफलाइन जितनी बार देखना है देख लो. इफ यू हैव अंडरस्टूड माई लेक्चर, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक. दिस वाज वाजिद सर साइनिंग आउट.